Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in the revision series I am doing chapter 16 for you, which is our celestial neighbors. I have started this chapter few days back, and so far we have completed almost all the topics, and less part is left. That is related to constellations and stars, and rest we have completed. In today's video I will complete that portion which is related to stars, and then we will try to solve some exercises. Let us revise what we did in the past few videos. Children, the topic is the celestial neighbors. I have told you celestial, meaning of celestial. Celestial means the things that are in sky, the heavenly bodies. They are called celestial, and neighbors are the celestial objects which are near to earth. Neighbors are the people who live near our house. हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, जो आसपास जो घर हैं, उन घरों में जो फैमिलीज रहते हैं, they are called our neighbors. But अगर हम इसको थोड़े से बड़े प्रोस्पेक्ट में देखें तो earth is our home, और we live on the planet earth and earth is our home. So, हमारे इस घर अर्थ के आसपास जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो अर्थ के नेबर्स कहलाएंगे. तो इसमें सन है, मून है, स्टार्स है एंड प्लैनेट्स हैं. तो हम प्लैनेट्स के बारे में हमने इस यूनिट में नहीं पढ़ा है. हमें सिर्फ सन, मून और स्टार्स के बारे में ही बेसिकली पढ़ना है, जो हमारे अर्थ के नेबर्स हैं. सन क्योंकि सोलर सिस्टम का हेड है, इट इज द मेन ऑब्जेक्ट, द सेंटर ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. सो फर्स्ट वी स्टडीड अबाउट सन, which is a star. Sun is a star. It is a big ball of fire. It is a ball of glowing gas, and it is very huge. बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. It is the biggest object in the solar system. हमारे पूरे solar system में sun जो है वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है. Sun is the only object in the solar system which has its own heat and own light. The rest of the planets in the solar system, they do not have their own light, they do not have their own heat, and they reflect the light of sun. Sun's energy is called solar energy, which is very much popular nowadays. आप जगह जगह आप solar panels देखते होंगे. लोगों ने अपनी छत पे भी लगा के रखा हुआ है सोलर पैनल, which traps the energy of sun, and that energy is called solar energy. शहरों में आप जो लैम्प पोस्ट जो होते हैं, जो पोल्स लगे होते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वो सोलर एनर्जी से आजकल चलती हैं. सोलर कुकर्स हैं, सोलर देन फैक्ट्रीज में सोलर एनर्जी यूज होती है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सोलर कैलकुलेटर्स हैं, solar cookers हैं. There are many devices that run with the energy of solar. Sun is the source of life for earth. हमारे earth का source of life भी sun है. I have explained that in detail in the previous video, how sun is the source of life on earth, and without sun's light or without sun's heat, there would be no life on earth. That I have explained in the previous video. If you have not seen, please go through that video. I have explained that in detail. Next is moon. Moon is Earth's closest neighbor. It is closest to Earth, and moon is very much smaller than sun, but it looks similar to sun in size. देखने में sun और moon दोनों का size हमें similar दिखता है, but actually में moon बहुत ज़्यादा छोटा है sun से. Moon is smaller than Earth. Earth से भी छोटा है moon. तो सन के सामने हमारा अर्थ जब एकदम डॉट की तरह लगता है, तो सोचिए कि मून कितना छोटा होगा सन से, है ना. लेकिन दिखने में दोनों सेम लगती हैं. ऐसा इसलिए है कि कंपैरेटिवली मून जो है हमारे अर्थ के ज्यादा पास है और सन दूर है. ठीक है. अगर अर्थ से सन का डिस्टेंस देखें और अर्थ से मून का डिस्टेंस देखें, तो मून ज्यादा पास है सन की कंपैरिजन में. इसीलिए वो पास है और सन थोड़ा दूर है, इसलिए हमें दोनों सेम साइज के दिखते हैं. जनरली आपने देखा होगा, कोई दूर होती है चीज तो हमें छोटी दिखाई देती है, और पास होती है तो बड़ी दिखती है. तो यही रीजन है कि मून और सन हमें दिखने में सिमिलर लगते हैं. मून के पास भी अपना कोई हीट नहीं है, अपनी कोई
एनर्जी नहीं है। मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। मून ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, जिसको हम मून लाइट बोलते हैं, चांदनी रात बोलते हैं। लेकिन वो जो चांदनी है वो चांद की अपनी नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करती है सन के लाइट को। फिर एक और बात हम जो अक्सर सुनते हैं, दैट इज मून चेंजेस इट्स शेप। दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन, मून डज नॉट चेंजेस इट्स शेप। मून अपना शेप चेंज नहीं करता है, मून का शेप वैसा ही जैसा है, वो हमें दिखता है अर्थ से, बिकॉज द पोर्शन ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, वो जितना जितना हमें दिखता है अकॉर्डिंगली हमें मून का शेप वैसा दिखता है। मून के ऊपर सन की लाइट आती है, वो उस लाइट को मून रिफ्लेक्ट करता है, तो जिस पोर्शन पे, मून के जिस पोर्शन पे सन की लाइट आती है वो चीज हमको अर्थ से दिखती है, उतना ही पोर्शन हमें अर्थ से दिखता है। तो कभी कभी होता है कि हमें पूरा का पूरा पोर्शन मून का दिखता है। जब सन की लाइट मून पे आती है तो पूरा मून हमें दिखता है, देन वी सी मून एज राउंड। बट जैसे जैसे मून मूव करता है तो वो जो लाइट है मून के ऊपर, जो सन की लाइट है वो कम होती जाती है, साइड पूरे मून के ऊपर नहीं आती है। तो कभी हमें आधा दिखता है, कभी उससे कम, कभी उससे कम, कभी बिल्कुल भी मून हमें दिखाई नहीं देता है। बट इट डज नॉट मीन दैट मून चेंजेस इट्स शेप। व्हाट वी सी फ्रॉम अर्थ, हमको अर्थ से उतना ही पोर्शन मून का दिखता है, ठीक है, क्योंकि मून भी रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, प्लस अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। मून अपने एक्सिस पे जितने टाइम में रोटेट करता है उतने ही टाइम में वो अर्थ के भी चक्कर लगाता है। मतलब 27 एंड 3/4 डेज, इतने दिन में मून अपनी जगह पे घूमता है, प्लस अर्थ के भी चक्कर लगाता है। तो मूवमेंट के दौरान जो सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती रहती है और हमें अर्थ से दिखती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें मून का शेप दिखता है। तो कभी मून हमें पूरा गोल दिखता है और कभी हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। कभी हमें थोड़ा सा ऐसा मोटा सा दिखता है, कभी डी दिखता है, कभी वो इस तरह से दिखता है, कभी इस तरह दिखता है, कभी उल्टा भी दिखता है, कभी इस तरह से दिखता है। तो इट ऑल बिकॉज ऑफ the sunlight which the moon reflects। तो मून के बारे में भी हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया था। और stars are also heavenly bodies। they are stars, and stars are as big as sun, they may be bigger than sun, but since they are very far away from earth, वो अर्थ से इतने दूर हैं कि वो हमें डॉट्स की तरह दिखते हैं, and they twinkle। उनको हम एक्चुअली में अगर चाहें तो हम स्टार्स को बोल सकते हैं ट्विंकलिंग ल्यूमिनस हेवनली बॉडी, कि वो हमें दूर से ऐसे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम Earth. There are millions and millions of stars in the sky, but we cannot see them because they are very far away from us. And billions of stars together make galaxy. जो गैलेक्सी होती है उसमें बिलियंस ऑफ स्टार है। बिलियन कितना होता है? बहुत ज्यादा, अनकाउंटेबल आपके लिए बोल दे तो बिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर मेक गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है ऐसे वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। उस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है। ऐसे तो यूनिवर्स में और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, लेकिन हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। मिल्की वे को हम हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, आकाशगंगा, उसमें हमारा ये सोलर सिस्टम आता है। और इतने सारे स्टार्स हैं पर वो दूर हैं, इसलिए हमें वो छोटे छोटे हमें दिखते हैं और वो ऐसे शाइन करते हुए दिखते हैं इस तरह से। But they all have shape like sun. They all are huge ball of fires. They all are glowing gases. बस वो डिस्टेंस की वजह से हमें वो ऐसे शाइन करते हुए दिखते हैं। स्टार्स के बारे में हमने भी पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म सर्टेन पैटर्न, कुछ पैटर्न अगर आसमान में बनाते हैं तो उसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। एंड देयर आर मेनी कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं आसमान में, अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। कभी कोई फिगर बनती है, किसी पर्सन की फिगर, कभी किसी एनिमल की फिगर, या कोई भी कैरेक्टर का ऐसा फिगर आसमान में हमें बनता हुआ दिखता है थ्रू ग्रुप ऑफ स्टार्स, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस।
और ऐसा बोलते हैं कि अब तक जो नोन कॉन्स्टलेशंस हैं 88 कॉन्स्टलेशंस आर देयर इन द स्काई। अब तक जो पता है जितना के बारे में 88 कॉन्स्टलेशंस के बारे में पता है। और इसमें एक उर्सा मेजर है जिसे हम हिंदी में शायद सप्तऋषि बोलते हैं। दैट इज द मोस्ट क्लियरेस्ट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। बहुत क्लियर है एंड इट इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन। और भी बहुत सारे कॉन्स्टलेशन है, जैसा मैंने बताया 88 हैं, उनमें थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर है जिसे ग्रेट बियर भी बोलते हैं। और भी कई कॉन्स्टलेशंस है, स्कॉर्पियस है, ओरियन है, बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टलेशंस हैं आसमान में। जब आप और सीनियर क्लास में जाओगे, बड़ी क्लास में जाओगे, तब आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अब बात करते हैं सनडायल की। हैव यू हर्ड द नेम सनडायल? दिस सनडायल है क्या? चिल्ड्रन, सनडायल जो है वो एक्चुअली में उससे टाइम देखा जाता था। एक टाइम था जब लोग रिस्ट वॉच नहीं पहनते थे, व्हेन पीपल आर नॉट वेयरिंग रिस्ट वॉचेस, तो वो टाइम देखते थे सनडायल से। अब सनडायल क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यू कैन से जो स्टोन्स वगैरह से बना होता है, उसके ऊपर सन की लाइट आती है और वो सन का जो शेडो उसके ऊपर आता है उसके थ्रू लोग टाइम देखते थे। सन का शेडो जिस एंगल पे पड़ता था सन डायल के ऊपर, उससे टाइम पता चलता है। उसको कहते हैं सनडायल। ये एंशियंट स्टाइल था टाइम देखने का थ्रू द शेडो ऑफ सन। मतलब जो सनडायल होता था, सनडायल जो होता था उसके ऊपर सन का शेडो किस तरह से पड़ता है, किस एंगल पे, कहाँ पे पड़ता है, उसमें रीडिंग लिखी होती है और एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है सनडायल पर सन की लाइट्स के हिसाब से। सो इट सनडायल टेल्स द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ सनलाइट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सनलाइट इट टेल्स द टाइम, tells the time on the basis of position of sunlight on it। आपने कुछ ऑब्जर्वेटरीज हैं हमारे कंट्री में, एक लखनऊ में है, एक जयपुर में है, दिल्ली में भी है, जंतर मंतर के नाम से। जंतर मंतर नाम की ऑब्जर्वेटरी है जयपुर, लखनऊ एंड दिल्ली। जयपुर में जो जंतर मंतर है दैट इज मेड बाय महाराज जय सिंह। महाराज जय सिंह ने बनवाई थी। वो उनको बहुत एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ स्टडीइंग सेलेस्टियल बॉडीज, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है वो साइंस जिसमें कि हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा जाता है। सन, मून, स्टार, जो भी यूनिवर्स में जो चीजें होती हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। सो उसको एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, दे स्टडी अबाउट, एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी अबाउट सन, मून, स्टार्स, देयर पोजीशन, देयर मूवमेंट, उसके बारे में ये लोग पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स पढ़ते हैं। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट इज अ साइंस दैट स्टडीज द यूनिवर्स। वो यूनिवर्स को पढ़ते हैं। तो जो जयपुर में जो ऑब्जर्वेटरी है वो महाराजा जय सिंह ने बनवाई थी और उनको इस एस्ट्रोनॉमी में, सॉरी नॉट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था, जिसे हम हिंदी में खगोल शास्त्र बोलते हैं, इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो उनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी जिसमें एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल है, जिसका जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसका नाम है। इट हैज लार्जेस्ट सनडायल। तो जंतर मंतर ऑफ जयपुर हैज लार्जेस्ट सनडायल। और ये जो सनडायल है, जो भी सनडायल होता है, उससे हमें टाइम पता चलता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सनलाइट। देन एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपको बता रही थी, एस्ट्रोनॉमी नॉट एस्ट्रोलॉजी, सॉरी,
एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। मैंने पहले गलत बोल दिया था, एस्ट्रोलॉजी बोल दिया था, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? इज अ साइंस, एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंस दैट स्टडीज द यूनिवर्स with all its celestial bodies and related things, related phenomena बोल सकते हैं, related things बोल सकते हैं, phenomena आपके लिए बड़ा वर्ड हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिखते हैं। Astronomy is a science that studies the universe with all its celestial bodies and related things. यूनिवर्स को आपने सुना होगा, हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं। तो पूरे यूनिवर्स के बारे में जो एस्ट्रोनॉमी होती है वो एक साइंस है जिसमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ा जाता है, पूरे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा जाता है, उसमें जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है उसके बारे में पढ़ा जाता है, उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना, जो भी थिंग्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। और जो लोग इसको पढ़ते हैं दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। Astronomers, they study astronomy, they study astronomy। ये लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। एंड दे यूज टेलीस्कोप। क्या यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स यूज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप होता है, उससे आसमान में जो चीजें होती हैं उनको देखा जाता है। दूर की, बहुत दूर की चीजें हमें पास में दिखती हैं थ्रू टेलीस्कोप। और बहुत जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं इनके पास बहुत पावरफुल टेलीस्कोप्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप्स होते हैं जिससे कि ये स्काई में जो चीजें होती हैं उसके बारे में ये स्टडी करते हैं। टेलीस्कोप के थ्रू देखने को, रोज रोज तो कोई यूनिवर्स में तो जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग टेलीस्कोप, बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप्स लेते हैं जिसके लेंसेज बहुत पावरफुल होते हैं, उसके थ्रू ये लोग यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। दे यूज टेलीस्कोप। Astronomers use telescope। ठीक है। एंड सिर्फ टेलीस्कोप ही नहीं, और मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, और भी कई मॉडर्न चीजें यूज करते हैं टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड, study and understand the universe। Okay, astronomers क्या करते हैं? They use telescope and modern equipments। इक्विपमेंट्स होता है मतलब और जो मॉडर्न चीजें होती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और उसकी मदद से वो यूनिवर्स को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, बहुत अच्छे से उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। अभी ऐसा थोड़ी ना है कि सारा यूनिवर्स में जितनी चीजें सब डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, अभी बहुत सारा इसमें मिस्ट्री अभी बची है यूनिवर्स की, एंड आर एस्ट्रोनॉमर्स आर वर्किंग ऑन इट। इंडिया में तो बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती है। एस्ट्रोनॉमर्स हैं, बहुत पुराने एस्ट्रोनॉमर्स हैं। आपने नाम सुना होगा भास्कर, अगर नहीं भी सुना, भी बहुत छोटे हैं, आपने हो सकता है नाम नहीं सुना होगा। भास्कर हैं, वाराहमिहिर हैं, ये लोग क्या थे? एस्ट्रोनॉमर्स थे। आर्यभट्ट तो बहुत कॉमन नाम है। आर्यभट्ट है, वाराहमिहिर है, भास्कर है। दीज वर द एस्ट्रोनॉमर्स हु स्टडीड अबाउट प्लैनेट्स, हु स्टडीड अबाउट मून, हु स्टडीड अबाउट अर्थ। जब इतने मॉडर्न हम इक्विपमेंट्स नहीं थे, जब इतने पावरफुल टेलीस्कोप्स नहीं थे, स्टिल दे स्टडीड अबाउट यूनिवर्स। उन्होंने यूनिवर्स की इतनी पढ़ाई की थी। तो ये सारा था आपके चैप्टर की चीजें।
ठीक है। अब एक और टॉपिक रह गया है कि रात और दिन कैसे होते हैं। ये एक आपका इसमें बचा हुआ है कि अर्थ पर डे और नाइट कैसे होता है। मैंने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ अर्थ उससे होता है, लेकिन एक बार हम उसको समझ लेते हैं किस तरह से होता है। अर्थ की दो मूवमेंट है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अर्थ हैज टू मूवमेंट्स, ओके। अर्थ हैज टू मूवमेंट्स, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो जो अर्थ का रोटेशन है इससे होता है डे एंड नाइट, और ये वाला इससे होता है चेंजेस ऑफ सीजन्स। चेंजेस ऑफ सीजन्स, सीजन जो बदलते हैं वो रिवॉल्व करने से होता है। जो अर्थ सन के अराउंड मूव करती है उससे सीजन्स चेंज होते हैं, और रोटेट अपनी जगह पे जो घूमती है उससे डे और नाइट होता है। कैसे होता है? सन तो अपनी जगह पे है, उसकी तो लाइट है ही है। तो जो हमारा अर्थ है जब अपनी जगह पे घूमता है तो घूमते घूमते जो पोर्शन ऐसे घूमते घूमते सन के सामने जो भी पोर्शन आता है, लाइक दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, तो जब वो ऐसे घूम रहा है, चलिए इसी को हम ले लेते हैं, ये दिस विल बी मोर बेटर। अब जैसे कि ये सन है और सन की लाइट इस पे आ रही है तो वी कैन सी दिस, ये हमको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही अर्थ घूमना शुरू करेगा तो अब इस पोर्शन पे अगर सनलाइट है तो ये पोर्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सन की लाइट नहीं है, मतलब ये डार्क है, ठीक है। फिर ये घूमते 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 घूमता रहता है। जो जो पोर्शन सन की पोजीशन अपनी जगह पे स्टेशनरी है, वो सन नहीं मूव हो रहा है, अर्थ मूव हो रहा है। और जो पोर्शन सन के सामने आते जा रहा है, जो जो पोर्शन सन के सामने आ रहा है, वहाँ वहाँ दिन होता जाता है, और जो जो सन के पीछे चला जाता है वहाँ वहाँ रात होती रहती है। तो जिस पार्ट पर सन फेस करता है, जिस अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है वहाँ डे होता है, और जो पीछे का पार्ट होता है वहाँ पे नाइट होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अर्थ पर एक साथ सब जगह दिन नहीं होता है, और अर्थ पर सब जगह एक साथ रात नहीं होती है। कहीं दिन हो रहा होता है तो कहीं रात हो रही होती है, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है। तो जो जो पोर्शन सन के सामने आते जाएगा वहाँ वहाँ दिन होता जाएगा, बाकी जगह रात होती है। दिन हो रहा है और धीरे धीरे शाम हो रही है, फिर रात हो रही है, फिर दिन हो रहा है, शाम हो रही है, रात हो रही है। इस तरह से वो मूव करता रहता है। दिस इज हाउ डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड। इस तरह से दिन और रात होती है। तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ जाना, अर्थ के, सन के बारे में, मून के बारे में, स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। थोड़े से एक्सरसाइजेस हम आज कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। Our first exercise is answer in one word. Answer in one word. First one. The largest object in solar system. Which is the largest object in the solar system? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? Is it a planet? Any of the planet? No. It is sun.
Sun is the largest object in the solar system. Next is the Earth's closest neighbor. Closest neighbor of Earth. Earth का closest neighbor कौन सी celestial bodies है? कौन सी heavenly body Earth की closest neighbor है? And the answer is Moon. Number 3. 3 is the small depressions seen on the moon. The small depressions seen on the moon. They are called, क्या कहते हैं उसको, जो मून पे गड्ढे गड्ढे दिखते हैं उसको क्या कहते हैं? They are called craters. The small depressions seen on moon are called craters. Next is the night when we see the night when we see no moon in the sky. जिस रात में आसमान में मून नहीं दिखता है, that night is called न्यू मून. उसको हम बोलते हैं न्यू मून. हिंदी में कहते हैं अमावस्या. The night when we see no moon in the sky, it is called new moon. Next, number 5, the source of life on earth. Which is the source of life on earth? Earth का source of life क्या है? Again, the answer is sun. Sun is the source of life on earth. Sun नहीं है तो life नहीं होगी. Next is इसको आप देख लीजिए तो फिर मैं और लिखती हूँ. These are the 5 1-1 answers. Then I will give you few more. Next one is number 6. The number of planets in the solar system. Solar system में कितने planets हैं? What is the number of planets in our solar system? And the answer is 8. Solar system में 8 planets हैं. Okay? Number of planets in solar system are 8. Next one is the first person, to step up on the moon. The first person to step on the moon. Step on the moon. कौन था फर्स्ट पर्सन? वो फर्स्ट पर्सन कौन था जो सबसे पहले मून पर गया, जिसने मून पर सबसे पहले अपना पैर रखा? Who was that person? Children, the answer is Neil Armstrong.
Neil Armstrong. Neil Armstrong was the first astronaut, first person who stepped on the moon. Children, with this we come to the end of today's video. भी कुछ exercises हैं that we will do in the next video. अपने अगले वीडियो में उसको करेंगे. आज के वीडियो कहीं पे wind up करते हैं and we will meet in the next video. Okay? Go through the chapter, revise the exercises, and in case of any doubt, you can clear it in the online class. Okay? Thank you.